मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Hope you guys are doing very well. Today in this video we are going to discuss sample test paper for the post of PST Sakhar IBS services solved by Fida Hussain. The paper has been divided into 5 parts. Part 8 Mother Tongue Sindhi Urdu, which has 20 questions. Part 2 SST GK Islamiyat, which has 20 questions. Part 3 English, which has 20 questions. Part 4 Maths, which has 20 questions. Part 5 Science, which has 20 questions. Here we will discuss Part 3, 4 and 5, which are English, Maths and Science. Let's discuss Part 3, which is English. In English we have question reading comprehension. Question number 1, we have reading comprehension. आइए देखते हैं कि इस सवाल में क्या बताया गया है. Read the following passage carefully and answer the questions from 1 to 2 set below it. The floods during the monsoon season in 2010 affected people in all the 4 provinces of Pakistan. Thousands of people lost their family members, relatives or friends. Thousands, in fact hundreds of thousands, became homeless. Huge areas of land were flooded and the crops were destroyed. People lost cattle, chickens and other sources of income. But people had faith in Allah. They did not give up hope. Soon things started to change for the better for many of them. Thousands, in fact hundreds of thousands, became homeless. The underlined words in the above sentence mean: Option A, countless people. Option B, a large number of people. Option C, as many people as you can think of. Option D, a lot of people. Option A हमारे पास जवाब है countless people. Question number 2, the verb lost used in the second sentence of the paragraph is the second form of past indefinite. Option A, lost. Option B, lose. Option C, lost. Option D, lose. Option A, lost. Option B, lose. Option C, lost. Option D, lose. हमारे पास इसका आंसर है lost, which is the second form of past indefinite. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है synonym. Synonym क्या होते हैं? वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग्स, वो अल्फाज जिसके मायने सेम हो. हमारे पास है मॉनसून, जो पैसेज में वर्ड यूज़ हुआ है मॉनसून. आइए देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा. ऑप्शन ए, अ पीरियड ऑफ हैवी रेन्स. ऑप्शन बी, अ स्ट्रॉन्ग विंड इन एशिया. Option C, wind that brings rain from northeast in winter. Option D, a long period of time when there is no rain. हमारे पास आंसर क्या है? A strong wind in Asia. क्वेश्चन नंबर 4, सीज़न. अब सीज़न का हम देखते हैं कि आंसर क्या है. ऑप्शन ए, वेदर, the state of the atmosphere at a particular place and time as regards heat, cloudiness, dryness, sunshine, wind, rain, etc. Option B, any of the 4 main periods of the year. Option C, climate, the weather condition prevailing in an area in general or over a long period. Option D, environment, the surroundings or condition in which a person, animal or plant lives और ऑपरेट्स. हमारे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनी ऑफ द 4 मेन पीरियड्स ऑफ द ईयर. अब क्वेश्चन नंबर 5 है एंटीनम. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? एंटीनम्स. एंटीनम्स वो क्या होते हैं? वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग्स, जिसके मायने मुख्तलिफ हो.
अपोजिट हो। फ्रेंड्स रिवल्स, ऑप्शन ए रिवल्स, ऑप्शन बी कॉम्पिटिटर्स, ऑप्शन सी फाइटर्स, ऑप्शन डी एनिमीज। एंड इसका जो एंटीनिम्स है वो क्या है? एनिमीज। अब सिक्स में क्या है? लॉस्ट। अब लॉस्ट का एंटीनिम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, गॉट बैक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फाउंड, ऑप्शन सी रिसीव्ड, ऑप्शन डी अचीव्ड। अब इसमें जो लॉस्ट का एंटीनम क्या है? वो बी है, फाउंड। अब 7 पे क्या है? यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। हमें क्या करना है? जो ब्लैंक को फिल करना है विद द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। 7 पे क्या है? यू ऑलवेज डू योर वर्क। ऑप्शंस हैं इन, ऑप्शन ए में है इन, ऑप्शन बी में है एट, ऑप्शन सी में है ऑन, ऑप्शन डी में है टू। यू ऑलवेज डू योर वर्क ऑन टाइम। ऑप्शन 8 में क्या है? हमारे पास 8 पर क्या है? आई विल बी वेरी केयरफुल, फिल द ब्लैंक विद द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। आई विल बी वेरी यूजफुल डैश द फ्यूचर। ऑप्शन ए में इन, ऑप्शन बी में फॉर, ऑप्शन सी में एट, ऑप्शन डी में क्या है? बाय। अब हमारे पास हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आई विल बी वेरी केयरफुल इन द फ्यूचर, ऑप्शन ए इन। आइए देखते हैं पार्ट 4 मैथमेटिक्स। पार्ट 3 इंग्लिश के जो क्वेश्चन से वो हमने सॉल्व किए। अब हम देखते हैं पार्ट 4 मैथमेटिक्स में क्या सवालात हैं और इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव कैपिटल A is equal to 5AB where make B the subject of the formula। इसमें हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हम किस तरह करेंगे। इसमें ऑप्शंस गिवन है, B इज़ इक्वल टू कैपिटल A प्लस 5A, ऑप्शन B इज़ इक्वल टू कैपिटल A डिवाइडेड बाय 5A, ऑप्शन C B इज़ इक्वल टू कैपिटल A माइनस 5A, ऑप्शन D B इज़ इक्वल टू कैपिटल A माइनस 5 माइनस A। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास क्या है? कैपिटल A है, इज़ इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास क्या है? 5AB। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B। तो हम क्या करेंगे? 5A को लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइडेड बाय करेंगे कैपिटल A से, जिससे हमें B की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है? कैपिटल A डिवाइडेड बाय 5A, और राइट हैंड साइड पे क्या है? B, विच इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू कैपिटल A। हमारे पास न्यूमरेटर में कैपिटल A है और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5A, विच इज़ द आंसर ऑफ B। हमारे पास ऑप्शंस में ऑप्शन B हमारे पास आंसर है, जो है B इज़ इक्वल टू कैपिटल A डिवाइडेड बाय 5A। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 लाइन्स दैट मेक एन एंगल आर कॉल्ड, ऑप्शन E वर्टेक्स, ऑप्शन F रेस, ऑप्शन G सेगमेंट, ऑप्शन H स्केलन। हमारे पास आंसर क्या है? वर्टेक्स, विच इज़ अ ऑप्शन E। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं और उसके बीच में जो साइन यूज़ की गई है वो माइनस है। इसका मतलब है जब हम अलजेब्रा फॉर्म में जब हमें कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो उसमें जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जब दो ब्रैकेट क्लोज होंगे तो जब हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन की साइन यूज़ करेंगे तो उनके बीच में जो उनकी साइन हम यूज़ करेंगे, चाहे रादर इट इज़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आइए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 3x² + 2x - 2, ऑप्शन बी -x² + 2x + 10,
ऑप्शन सी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2, ऑप्शन डी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। सोल्यूशन इसका क्या होगा? ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें इनको इनके बीच में हमारे पास साइन है वो है सब्ट्रैक्शन की, मीन्स माइनस की। एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब अलजेब्रिक में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ब्रैकेट खुद ब खुद ओपन हो जाएंगी, मतलब साइंस ओपन हो जाएंगी, तो उसकी जब वो ओपन होगी तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है तो माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यह माइनस 3x है तो यहाँ पे साइन चेंज होगी, क्या होगा? प्लस 3x आएगा, और प्लस 6 है तो ब्रैकेट ओपन हुआ तो साइन चेंज हो जाएगी, वो क्या आया? माइनस 6। तो इससे माइनस 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही प्लस 3x प्लस 5x आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस 8x। ऐसे ही माइनस 6 में से प्लस 4 हम निकालेंगे, क्या आएगा? माइनस 2। जो हमारे पास आंसर है क्या? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2, जो हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन सी में है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2। ये हमारे पास मैथ्स का पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं सबसे लास्ट पार्ट 5, उसमें क्या गिवन है। उसमें सबसे पहला जो सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग में कॉज फ्लू? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्लांट, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी फंजाई। तो हमारे पास आंसर क्या है? वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो है। क्वेश्चन नंबर 2 है द पार्टिकल्स इन लिक्विड हैव द फॉलोइंग मूवमेंट। ऑप्शन ए मूव रैंडमली विथ अनलिमिटेड स्पेस, ऑप्शन बी मूव रैंडमली विथ लिमिटेड स्पेस, ऑप्शन सी वाइब्रेट एट अ फिक्स्ड पोजीशन, ऑप्शन डी वाइब्रेट रैंडमली विथ अनलिमिटेड स्पेस। अब इसमें हमारे पास आंसर जो है वो है ऑप्शन बी मूव रैंडमली विथ लिक्विड स्पेसेस। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल सर्किट, वन बल्ब लास्ट विथ व्हाट विल हैपन टू द अदर बल्ब? ऑप्शन ए ऑल्सो blast, ऑप्शन बी go out, बी turn off, ऑप्शन सी ग्लोस ब्राइटर, ऑप्शन डी रिमेन्स सेम। हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? रिमेन्स सेम। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है कि वाई इट विल बी रिमेन सेम, बिकॉज इफ वन बल्ब blows out it acts as an open circuit. Current does not flow in that branch, but it continues to flow in the other branch of the parallel circuit. Hence, the other bulb continues to glow. अब क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सैटेलाइट? ऑप्शन ए मून, द मून इज अर्थ's only natural satellite. Option B Sputnik 1. Option C Saturn is the 6th planet from the sun. Option D comet. A comet is an icy small solar system body that when passing close to the sun. Explanation. Why is Sputnik? Explanation.
कि स्पुतनिक क्यों, इसका जवाब क्यों है। स्पुतनिक 1 spacecraft was the first artificial satellite successfully placed in orbit around the earth। थैंक यू। ये हमारे साथ अब पार्ट 5 साइंस का भी कंप्लीट हो गया। तमाम ॾिसंदड़नि खे टीम पैगाम सिंध की तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम हक मौजूद। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में IBA के सैम्पल पेपर के मुतल्लिक डिस्कस किया था, जो कि PST का पेपर था, और उसमें हमने पार्ट नंबर 3 इंग्लिश, पार्ट 4 मैथमेटिक्स और पार्ट 5 साइंस को कवर किया था। लिहाजा इस वीडियो में हम जो पार्ट 1 है मदर टंग मीन्स सिंधी और उर्दू, और पार्ट 2 जो कि सोशल स्टडीज़, GK, इस्लामियात और इथिक्स पे मुश्तमिल है, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट मदर टंग, जिसमें पहले सिंधी आता है। तो सिंधीअ जा बेसिकली 20 क्वेश्चन्स हूंदा असांजे पेपर में। हुन जो फॉर्मेट जेको ॾिनल आहे, मथां हिकिड़ी असांखे इबारत ॾिनल आहे, जंहिंमें चवे थो सवाल नंबर 1 खां 2 जा मुनासिब जवाब मथी इबारत मां चूंडियो। पहिरों सवाल आहे, हीअ इबारत कहिड़ी सिन्फ़ सां वास्तो रखे थी। A कहाणी, B किस्सो, C लोक कहाणी, D आखाणी। त इन जो जेको सही जवाबु आहे सो आहे आखाणी। सवाल नंबर 2 आहे, कांव जो मुअन्निस चूंडियो। A कांवणी, B कांइर, C कांव, D कांगी। त इन जो जेको सही जवाबु आहे सो आहे कांवणी। हाणे शाइरी जो पोर्शन अचे थो, जंहिंमें असांखे हिदायत ॾिनल आहे, हेठि ॾिनल शाइरी पढ़ी सवाल नंबर 3 खां 4 जा मुनासिब जवाब चूंडियो। अचोड़ी भेनर रांदि रचायूं, नंढड़ीअ गुॾड़ीअ खे परणायूं। अचो गुॾीअ खे ज़ेवर पायूं, बर्थ भरियल पोशाक ढकायूं। गुलनि फुलनि जी सेज सजायूं, ॾाज ॾियूं ऐं घोर घुमायूं। गॾिजी गीत ख़ुशीअ जा ॻायूं, नंढड़ी गुॾड़ीअ खे परणायूं। हाणे हिन मां सवाल नंबर 3 आहे, हिन शाइरी में इस्तेमालु थियल लफ़्ज़ घोर जो हम माना लफ़्ज़ चूंडियो। A कुर्बान, B घुमण, C निहारण, D घुरण। इन जो सही जवाबु आहे A कुर्बान। चौथों, ही सिटूं शाइरीअ जी कहिड़ी सिन्फ़ सां वास्तो रखनि थियूं। A बैत, B गीत, C सहरो, D नज़म। त ही जो जेको सही जवाबु आहे सो आहे बैत। सवाल नंबर 5 खां 6 जा मुनासिब जवाब चूंडियो। लफ़्ज़ जेतोणीक जो मक़सदु सम्झायो। A इन खां सवाइ, B इन हूंदे बि, C इन खां पोइ, D इन खां अॻु में। जंहिंजो सही जवाबु आहे इन हूंदे बि, ऑप्शन नंबर B। हाणे सवाल नंबर 6 अचे थो, हेठि ॾिनल फ़िक्रनि मां इस्तिलाह चूंडियो। A मददगार थियण, B नुक़सान सहण, C इल्ज़ाम लॻण, D अखि ॾेखारण। सो इन जो सही जवाबु आहे D अखि ॾेखारण। छो त इस्तिलाह असां पहिरें बि सिंधी ग्रामर वारी वीडियो में डिस्कस करे आहियूं, त उहो लफ़्ज़ हूंदो आहे जंहिंजी लफ़्ज़ी माना हिकिड़ी हूंदी आहे, पर उन जे मफ़हूम वारी माना ॿी हूंदी आहे। सो हिते जेको लफ़्ज़ आहे उहो आहे D अखि ॾेखारण। वधीक जेको आहे सो सिंधी ग्रामर
सिंधी नसर ऐं सिंधी नज़म बाबति असांजी वीडियोज़ यूट्यूब चैनल ते पियल आहिनि। जेके दोस्त ॾिसणु चाहिनि उहे ॾिसी सघनि था, छो त हीउ सैम्पल पेपर आहे ऐं इन्हनि शयुनि मां के बि शयूं अॻिते जे पेपर में अची सघनि थियूं। यहाँ पे जो उर्दू मदर टंग का पोर्शन है उसमें हमें एक इबारत दी गई है जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए जिनके पास सैम्पल पेपर है वो ख़ुद उसको पढ़ सकते हैं। तो हिदायत जो दी गई है, दर्ज झेल नसर की मदद से सवाल नंबर 1 ता 2 के दुरुस्त जवाबात की निशानदही कीजिए। ज़ेर नज़र इबारत अदब की सिन्फ है जिसे कहते हैं ए में खाका, 2 में सवाने उमरी, 3 में शख्सियत निगारी, 4 में आप बेती। तो ये इसका सही जवाब होगा खाका। और उर्दू अदब की जो नसर की सिन्फ़ें हैं, असनाफ़ हैं, उसके मुतालिक भी हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तमाम दोस्त उसको भी देख के ये खाका, सवाने उमरी, शख्सियत निगारी, आप बीती, इसके मुतालिक वहाँ पे पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। दर्ज बाला नसर पारे में ख़त कशीदा जुमलों में 3 रमूज़ औकाफ मुश्तमिल हैं: सक्ता, वाविन और ख़त्मा। वाविन, ख़त्मा, कोसैन, तफसीलिया, सक्ता और ख़त्मा। डी, तफसीलिया, वाविन और ख़त्मा। तो इसका दुरुस्त जवाब है डी, तफसीलिया, वाविन और ख़त्मा। हिस्सा दोम। हिस्से दोम में एक हमें नज़म दी हुई है और हिदायत दी गई है दर्ज झेल नज़म की मदद से सवाल नंबर 3 ता 4 के दुरुस्त जवाबात की निशानदही कीजिए। 3 नंबर सवाल है दर्ज बाला नज़म की हैयत की निशानदही कीजिए कि ये नज़म की कंपोजिशन क्या है। ए में है तरकीब बंद नज़म, तरजीह बंद नज़म, मोर्रा नज़म, तरसीह नज़म। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा तरजीह बंद नज़म। सवाल नंबर 4 है मज़कूरा नज़म का हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल है जिसे शायराना इस्तिलाह में कहते हैं मुखमस, मुसद्दस, मसबा, मसमन। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुसद्दस। हिस्सा सोम जो है वो सर्फ़ व नहू के बारे में है और हिदायत जो की गई है वो है सवाल नंबर 5 ता 6 के दुरुस्त जवाबात की निशानदही कीजिए। ग़ुलाम के मुअन्नस हैं ए आया, बी ग़ुलामन, सी लौंडी, 4 नौकरानी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा लौंडी। 6 खाली जगह पुर करने के लिए दुरुस्त लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। यहाँ पे हमारे पास ग्रामर आ रही है। डॉक्टर अहमद माहिर है हर अमराज का, हर मरीज़ा का, हर मर्ज़ का, हर मराइज़ का। तो यहाँ पे हमारा दुरुस्त जवाब होगा नंबर सी, हर मर्ज़ का। पार्ट 2 जो है हमारा जनरल इस्लामियात पे मुश्तमिल है, उसका सवाल नंबर 1 की तलाश फ़र्ज़ी इबादत के बाद ऑप्शन ए सुन्नत है, बी सवाब है, सी फ़र्ज़ है, डी जायज़ है। तो इसका सही जवाब होगा सी फ़र्ज़ है। सवाल नंबर 2 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कौन सा पेशा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो पेशो कहिड़ो हुयो। तरखान थे, वाढो हुयो, गडरिया थे, बकरार हुयो, दर्जी थे, दर्जी हुयो, लोहार थे, लोहार हुयो। तो इसमें हमारा दर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी असांजो सही हूंदो, दर्जी हुआ।
सिंध पर हमले के वक्त मोहम्मद बिन कासिम के पास कितनी पत्थर फेंकने वाली मशीनें मंजनीकें थीं? सिंध ते हमले जे वक्त मोहम्मद बिन कासिम वटि केतिरियूं मंजनीकूं हुयूं? मंजनीकूं पत्थर उछलाइण वारी मशीनूं हुयूं जेके अरबन जे इस्तेमाल में हूं जॾहिं अरबन सिंध ते हमलो कयो। ऑप्शन नंबर ए सी 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, नंबर डी 6। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5। पोर्शन है सोशल स्टडीज़ या करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1, पाकिस्तान के झंडे में हरा ग्रीन रंग क्या जाहिर करता है? अमन, नंबर बी खुशहाली, नंबर सी वक़ार, नंबर डी इत्तेहाद। सो इसका सही जवाब है खुशहाली, क्योंकि जो सफ़ेद रंग है वो अमन की निशानी है। सवाल नंबर 2 है, मुग़लों ने सिंध को अपनी सल्तनत में कब शामिल किया? सिंध के मुग़लन पंहिंजी सल्तनत में कॾहिं शामिल कयो? ऑप्शन नंबर ए 591 ईस्वी, नंबर बी 1592 ईस्वी, नंबर सी 1593 ईस्वी या नंबर डी 1594 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है 1591 ईस्वी। सवाल नंबर 3 है, कायद आज़म ने 14 नुकात कब पेश किए थे? सो इसका ऑप्शन ए है नेहरू रिपोर्ट के बाद, नेहरू रिपोर्ट से पहले, सी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद, डी इलाहाबाद के खुतबे के बाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हमारे पास नेहरू रिपोर्ट के बाद, क्योंकि जब आप सोशल स्टडी पढ़ेंगे तो उसमें मोतीलाल नेहरू था कांग्रेस रहनुमा, जिसने अपने नुकात पेश किए थे और मुस्लिम लीग की तरफ से कायद आज़म ने उनको रद्द करके अपने नुकात 1929 में पेश किए थे, जिनको कायद आज़म के 14 नुकात के नाम से तारीख़ में याद किया जाता है। सो ये थे आज का हमारे लेक्चर, जिसमें हमने पीएचडी का जो 2 रिमेनिंग पोर्शंस थे उसको कवर कर लिया है। मज़ीद फ़ीडबैक्स और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत शुक्रिया। मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।